welcome to Super 20 Institute. So, in today's class, we are going to discuss some assertion and reason type questions. So, assertion is a statement and reason is the justification for the statement. Okay. So, the first question will be, the assertion is molarity of the solution changes with temperature. Okay, this is the assertion, and the reason given is the volume of solution changes with change in temperature. Fine. So, as we all know that molarity is a temperature dependent term. So, जब हम ग्राफ बना रहे थे तो हमने देखा था, जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके, जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे तो कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी? फर्स्ट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी, ओके, एम मोलारिटी, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ मोलारिटी, और क्या किया था हमने? पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी, एंड एक क्या था? प्रेशर वाली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें हमने क्या पढ़ा था? ओके, सो अब इसमें क्या था, ये सारे टर्म्स में हमने यूज किया मोलैरिटी टर्म का, मोलैरिटी. Why we will not use molarity? Because molarity is a temperature dependent term, right? Molarity is a temperature dependent term, and molarity is temperature independent. ओके, मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती. सो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो अगर तो हम मोलैरिटी टर्म को कंसीडर करके ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है? फ्लक्चुएशंस टेम्परेचर में होने की वजह से ग्राफ में भी फ्लक्चुएशंस आती हैं. बट मोलैरिटी के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती. ओके, तो मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, सो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट. सो हम लिखेंगे assertion is true or correct, and reason क्या है? volume of solution changes with change in temperature. As we all know that molarity is given by, molarity is equals to number of moles of solute upon volume of solution. Okay, liter, and if it is given in milliliter तो हम कैसे लिखेंगे? number of moles of solute upon volume of solution.
in milliliter into 1000. Okay. So अब देखो molarity will be dependent upon volume. Molarity inversely proportional to volume. Fine. तो ये जो वॉल्यूम टर्म है ना, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. फाइन. तो इससे क्या होगा, अगर वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है तो जब वॉल्यूम चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगी. एंड अगर वॉल्यूम चेंज होगी तो क्या होगा, आपकी पोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल आल्सो चेंज. ओके. सो हम यहाँ पे लिखेंगे assertion is correct and the reason is also true and reason is correct explanation. Reason is correct explanation of assertion. Fine. So note it down. Next question is when ethyl alcohol is added water, its boiling point decreases. Boiling point decreases. Okay. And what is reason given for it? When a volatile, okay, when a volatile solute is added in volatile solvent, elevation in boiling point occurs. Okay. And यहाँ पे क्वेश्चन है when ethyl alcohol is added to water, boiling point of water increases. So this is your question and इसका रीजन आपको दिया. when a volatile solute is added in a volatile solvent, elevation in boiling point occurs. Okay, so write it down. Okay, so assertion से दिया when ethyl alcohol is added to water, its boiling point, the boiling point of water will increase. So assertion is wrong because we have studied that what जो हमारे पास प्योर कंपोनेंट होते हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, the pure component will always have more vapor pressure. तो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. ओके. तो जब हम इथाइल अल्कोहल को ऐड करते हैं वाटर में तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज. सो हियर बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीज व्हेन इथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर. ओके. इथाइल अल्कोहल कैसा सॉल्यूट है, वोलेटाइल, और ये क्या है, वाटर इज आल्सो वोलेटाइल. ओके. सो assertion is wrong but reason भी क्या दिया, when a volatile solute is added
In a volatile solvent, elevation in boiling point occurs. Okay, reason is correct. Reason is correct. Because जब हम एक volatile solute को ऐड करते हैं volatile solvent में, then the elevation in boiling point occurs. तो ये आपको याद रखना है, जब आपका volatile solute हो and volatile solvent हो, जब आप उन दोनों को ऐड करते हो तो क्या होता है, elevation in boiling point take place. Fine. So write it down. Next is when NaCl is added. Okay, the question is when NaCl is added to water, a depression in freezing point is observed. When NaCl is added to water, a depression in boiling point observed. And what is the reason given for this statement? The reason is the reason is the lowering of vapor pressure of solution causes depression in freezing point. The lowering of vapor pressure causes a depression in freezing point. Okay. So this is your assertion type question and this is the reason type question. तो आप इसकी statement पढ़ो and reason पढ़ो. देखो, when NaCl is added to water, a depression in boiling point observed. Okay, तो क्या होता है जब हम NaCl को water में dissolve करते हैं, so depression in boiling point, जो boiling point होता है वो decrease हो जाता है. Fine, तो क्या हुआ, हमारी जो assertion है ना, it is correct. Assertion is correct. And जो हमें reason दिया है, the lowering of vapor pressure causes a depression in freezing point. तो जो reason है, that is also correct. The reason is also correct. Okay. The lowering of vapor pressure causes a depression in freezing point. So why there is a depression in freezing point? There is depression in freezing point due to the solvent intermolecular forces. हमने पढ़ा था that जब हम किसी दो सॉल्यूशंस को ऐड करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे हमारे पास AA टाइप की इंटरेक्शन होती है, देन BB टाइप की इंटरेक्शन होती है, देन हमारे पास AB टाइप की इंटरेक्शन होती है. ओके, तो ये जो AA टाइप की इंटरेक्शन होती है दैट इज बिटवीन सोल्यूट पार्टिकल. किसमें होती है ये, सोल्यूट में. एंड BB टाइप की किसमें होती है, सॉल्वेंट में. एंड AB टाइप की किसमें होती है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में. ओके, तो इन्हीं इंटरेक्शन के बेस पे हमारे पास एजियोट्रोप्स आते थे, पॉजिटिव एजियोट्रोप्स एंड नेगेटिव एजियोट्रोप्स. एक हमारे पास पॉजिटिव वाला होता था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड नेगेटिव वाला मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे assertion and reason is also correct and reason will be, reason is a correct explanation of assertion. Fine. So see the next question.
ओके, now we are going to explain some basic terms that is used in chemistry. So, what is hydrogen bonding? It is a type of intermolecular force, okay, and hydrogen bonding is a strong bonding. So, the conditions required for hydrogen bonding will be, so write down the first condition will be there is a balance of, there must be a hydrogen atom, okay, present. And the second condition is there should be an electronegative and electronegative, there should be an electronegative atom, okay. So next is, ये जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, ये हमारा फर्दर अटैच होना चाहिए हाइड्रोजन के साथ, ओके ना। देखो एग्जांपल है इसके HF, तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ओके, एंड ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है HF, ओके। यहाँ पे कैसे होगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। So this is your hydrogen bonding, right? एक और एग्जांपल देखो, वाटर का एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फर्दर एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, so these are hydrogen bonding, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। One more example is this CH3, this is electronegative atom, तो क्या होगा, ऐसा ही कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ओके। तो इसी पे बेस्ड आपके पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाई water is liquid and H2S is the gas, ओके। तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया है, वाई, बिकॉज ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम
एंड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए हमने इन दोनों को कंपेयर किया है तो ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बट इनकी जो स्टेट ऑफ अकरेंस है वो डिफरेंट क्यों है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है आपके। The another term is ionization energy. So what is ionization energy? The energy required to move an electron from a gaseous atom is called ionization energy. Okay. Energy required to remove an electron from a gaseous atom is called ionization energy. Okay. So suppose this is our atom, this is nucleus, and here electrons are present. So ये जो बाहर वाला ऑर्बिटल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो जब हमने पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला वहाँ पे जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड थी दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंड वी रिप्रेजेंट इट एज 1। ओके, जब इसके बाद हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी 2। ओके, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? What is electronegativity? The tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. Okay, so some example of electronegative atoms are, this is one, that is fluorine, oxygen, nitrogen, then chlorine. Okay, so this is called electronegativity. Now I am asking you a question. Why a compound, why some compounds show color and some are not? तो कोई जो हमारे पास कंपाउंड है वो कलर क्यों शो करता है? तो किसी कंपाउंड के पीछे कलर शो करने का रीजन होता है द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, the reason is due to the presence of unpaired electron। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्कैंडियम, तो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? आर्गन 18,
3d1. ओके, नाउ हियर यहाँ पे d ऑर्बिटल में एक वन अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं? 5. ओके, तो d के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, d हैव 5 ऑर्बिटल्स and it will occupy 10 electrons. तो यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे? ऐसे। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन में भी अप डाउन, अप और डाउन, अप स्पिन हो सकता है, डाउन स्पिन हो सकता है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। क्वांटम नंबर ms will be प्लस माइनस हाफ। तो ये हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 0 + 1 + 2 -1 -2। ओके, अब यहाँ पे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या शो करेगा? कलर शो करेगा। फाइन। नाउ अनदर एग्जांपल इज जिंक 2 पॉजिटिव। ओके, +1 +2 -1 -3। So what is the configuration for zinc? Zinc we have zinc represented by the nearest noble gas argon. Okay, whose atomic number is 18. Argon 4s2 and 3d10. अब देखो what is the configuration for zinc 2 positive? तो जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कहाँ से करेंगे? s ऑर्बिटल से। ओके, जब हम ऐड करते हैं तब हम किस में ऐड करते हैं? d में, एंड रिमूव करते हैं s ऑर्बिटल से। सो इट बिकम argon 18 4s0 3d10। तो यहाँ पे करो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करनी है, तो 5 इलेक्ट्रॉन हम कैसे, हमने रूल पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पहले ये सारे ऑर्बिटल फिल करने हैं, देन उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। सो वी विल सी इट एज 1 2 3 4 5 एंड अब इसके बाद जो रिमेनिंग 5 है हम उनकी पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखो, इज एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट हियर? नो, यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो द कंपाउंड विल बी colorless. ओके, तो क्या होगा? ये वाला जो कंपाउंड होगा हमारे पास, ये क्या होगा? कलरलेस होगा। ओके, तो होता क्या है कि जब हमारे पास ये जो एटम है, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है एंड यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या होता है? व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी विल फॉल इन दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी स्टेट्स होती हैं। ओके, तो ये जो होती है ग्राउंड स्टेट होती है, व्हेन n इज इक्वल्स टू 0, एंड ये क्या होती है? हायर एनर्जी स्टेट्स होती हैं, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, ओके, अप टू एन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो क्या होता है? यहाँ से ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर सपोज इस स्टेट पे गया, तो यहाँ से जब इसकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो वो कहीं भी इस, सपोज तो यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, तो इस लेवल पे आके होल हो गया। तो अब हम देखेंगे कि इस एनर्जी लेवल, ये जो एनर्जी लेवल है, ये कौन से रीजन में लाई कर रहा है? इट मे बी लाइंग इन यूवी रीजन, इट मे बी लाई इन आईआर रीजन। तो ये जिस रीजन में लाई करता है उसी के अकॉर्डिंग जो होता है इसकी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कलर शो करता है। एंड कलर के लिए हम एक कलर व्हील भी यूज करते हैं।
So this is your color wheel. आपको पहले व्हील ड्रॉ करना है. ओके. And this will be named as विबग्योर. रेनबो के कलर होते हैं ना विबग्योर. ओके. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई जो मेरा कंपाउंड है दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड वायलेट कलर लाइट, तो वो एमिट करेगा येलो कलर की लाइट. ओके. सॉरी. तो अगर वो वायलेट कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है एमिट करेगा येलो लाइट को. उसी तरह अगर येलो कर रहा है एब्जॉर्ब तो एमिट करेगा वायलेट कलर की लाइट को. फाइन. अब मेरे को बताओ, अगर कोई कंपाउंड है वो ऑरेंज कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो एमिट कौन सी कलर की लाइट करेगा, तो हमें इसके ऑपोजिट देखना है ब्लू. ठीक है. तो ऑरेंज करेगा ब्लू को. मैं कलर यहाँ पे लिख देती हूँ. वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. Fine. So these are the color given in the color wheel. These wheel is very important for coordination chemistry. Okay. So student, these are the some basic concepts of chemistry. Okay. And we continue these type of concepts in the next class also. So that is all for today class. Thank you.